Good morning, students. Today we will discuss resolution of a given force in two given directions. In last chapter we discussed about how to calculate resultant if two components are given. In this lecture we shall discuss how to find out components of a resultant force. We know that if a resultant force is given, we can resolve it into two components in many ways, because on a given line as diagonal, an infinite number of parallelograms can be constructed. Therefore, resultant force can be resolved into two components in many ways, but we shall restrict ourselves in two given direction. Let F be any force represented in magnitude and direction by OC, and let OX and OY be the given direction, making angle alpha and beta respectively with OC, along which components are to be find out. Then OA is given by this formula, F sin beta over sin alpha plus beta, and OB is given by F sin alpha over sin alpha plus beta. मीन्स अगर हमें OA निकालना है तो हमें एंगल बीटा लेना है, और हमें अगर OB निकालना है तो हमें एंगल अल्फा लेना है. नीचे हमारा आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा. नाउ वी डिफाइन रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ ए फोर्स. इफ ए फोर्स इज रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स विच आर एट राइट एंगल, मीन्स अगर किसी भी फोर्स को हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं और वो फोर्सेस हमारे कितने डिग्री पे हैं, 90 डिग्री पे हैं, तो उन कंपोनेंट्स को हम क्या बोल देंगे, रिजॉल्व्ड फोर्सेस. नाउ OA इक्वल टू F साइन 90 माइनस अल्फा ओवर साइन 90. कैसे, हमारे पास फॉर्मूला था F साइन बीटा ओवर साइन अल्फा प्लस बीटा. हेयर बीटा इज 90 माइनस अल्फा and alpha plus beta equal to 90 degree. Therefore, OA equal to F cos alpha. Similarly, OB equal to F sin alpha. These are formula for finding the resolved part of a force. Now we give some examples. First example. If a force F be resolved into component forces, and if one component be at right angle to F and equal to root 3F in magnitude, find the direction and magnitude of the other components. हमें फोर्स गिवन है, इसको रिजॉल्व करना है दो फोर्सेस में. फर्स्ट कंपोनेंट का हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों गिवन है. मैग्नीट्यूड तो क्या है, उसकी एफ है, और उसकी डायरेक्शन क्या है, 90 डिग्री है. सॉरी, मैग्नीट्यूड है √3f है और डायरेक्शन हमारी 90 डिग्री है. हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अदर कंपोनेंट. लेट्स सोल्व दिस. लेट P be the other component of F and let this make an angle theta with it. Then angle AOB, this is 90 degree. क्यों, क्योंकि ये हमारा फोर्स F है, ये 90 डिग्री बना रहा है एक कंपोनेंट के साथ, और दूसरे कंपोनेंट के साथ हमने एंगल मान लिया थीटा. अब हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं. फॉर्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आएगी, √3f गिवन है, तो दिस इज इक्वल टू F साइन थीटा ओवर साइन 90 प्लस थीटा. एंड P किसके इक्वल आएगा, F साइन 90 ओवर साइन 90 प्लस थीटा बाय फॉर्मूला. नाउ सॉल्विंग 1 and 2 वी गेट बाय 1 √3f इक्वल टू F साइन थीटा बाय कोस थीटा. यहाँ से हमारे पास टेंजेंट थीटा √3 के इक्वल आ गया, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास होगी 60 डिग्री. एंड नाउ बाय 2 P equal to F upon sin 90 plus 60, which is equal to F by cos 60. Putting the value of cos 60, we get P equal to 2F. Therefore, this is the direction and this is the magnitude of other component. Now we solve next example. Next example is the resolved part of a force F in a direction is √3 by 2F. Find its inclination to the force and the other resolved part. क्या है, एक फोर्स गिवन है F और उसका जो रिजोल्व पार्ट है, एक रिजोल्व पार्ट हमें गिवन है √3 by 2F. हमें दूसरे वाला रिजोल्व पार्ट निकालना है और हमें एंगल निकालना है, ये फोर्स के साथ क्या बना रहा है. लेट्स सोल्व दिस. द गिवन फोर्स इज F.
Let the resolved part √3/2f makes angle alpha with the force F. Then by formula √3/2f क्या हो जाएगा हमारे पास F cos alpha. Cancelling F we get cos alpha equal to √3/2. तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई 30 डिग्री. Now other resolved part is given by F sin alpha means F sin 30. Putting the value of sin 30, other resolved part is given by F by 2. Now we solve example number 3. The resolved part of a force along a direction inclined at an angle alpha with it is of magnitude 30 and if alpha is equal to tangent inverse 4/3 then find the magnitude of the force and its other resolved part. मीन्स हमें क्या निकालना है, हमें फोर्स निकालना है अब की बार और हमें एक रिजोल्व पार्ट गिवन है जिसकी मैग्नीट्यूड तो 30 न्यूटन है और जिसका एंगल क्या है हमारे पास टेंजेंट इनवर्स 4/3. लेट्स सोल्व दिस. लेट द इंक्लिनेशन ऑफ द फोर्स F with OX be अल्फा देन टेंजेंट अल्फा इक्वल टू दिस वन. अब हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम से. हमारे पास साइन अल्फा और कोस अल्फा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लगा दिए हमने. साइन अल्फा की वैल्यू आ गई 4/5, कोस अल्फा की आ गई 3/5. अब हम रिजोल्व पार्ट ऑफ F निकालते हैं अलोंग x. अब उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास F cos अल्फा, बट दिस इज गिवन टू बी 30. देयरफॉर F इंटू 3/5 इक्वल टू 30. F की वैल्यू आ गई हमारे पास 50 न्यूटन. दिस इज द मैग्नीट्यूड. नाउ अदर रिजोल्व पार्ट along y is given by F cos 90 minus alpha because this angle is 90 minus alpha which is equal to F sin alpha which is equal to 50 into 4/5 by putting the value of F and alpha. This is equal to 40 न्यूटन. तो ये हमारे पास अदर रिजोल्व पार्ट आ गया और ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ गई. नाउ वी सोल्व एग्जांपल नंबर 4. द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q इज R. P और Q दो फोर्सेस गिवन है और उसकी रिजल्टेंट हमारे पास R गिवन है. द रिजोल्व पार्ट ऑफ R इन डायरेक्शन ऑफ P इज ऑफ मैग्नीट्यूड Q. और जो R रिजल्टेंट है उसका रिजोल्व पार्ट किसकी डायरेक्शन में, P की डायरेक्शन में. क्या गिवन है Q. तो शो करना है हमें एंगल बिटवीन दी फोर्सेस. जो ये दो फोर्सेस हैं P और Q उनके बीच का जो एंगल है वो आएगा हमारा ये. लेट्स सोल्व दिस. हम क्या करते हैं, ये फोर्सेस हैं, लेट OA और OB रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन फोर्सेस को और अल्फा क्या है इन दोनों के बीच का एंगल. हम मान लेते हैं जो रिजल्टेंट है वो थीटा एंगल बना रही है OA के साथ. देन रिजोल्व पार्ट ऑफ R अलोंग OA. अब R का रिजोल्व पार्ट OA के अलोंग क्या होगा, फॉर्मूला क्या है F cos अल्फा. अब F की जगह हमारे पास R है, अल्फा की जगह हमारे पास थीटा है तो R cos थीटा आ गया. अब R किसके इक्वल है, OC के, और cos थीटा बाय ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला साइन फॉर्मूला क्या आएगा OD बाय OC क्योंकि कोस थीटा हमारा क्या होता है बेस ओवर बेस ओवर हाइपोटेन्यूस. देयरफॉर OC into OD by OC कैंसिल हो गए विच इज इक्वल टू OD. अब OD किसके इक्वल है, OA प्लस AD के. अब OA तो हमारे पास P के इक्वल है, AD हम फिर से कैलकुलेट कर लेंगे. AD क्या हो जाएगी हमारी Q cos अल्फा. But resolved part of R along OA is given to be Q. Therefore, this is equal to Q. So then Q equal to P plus Q cos alpha. Solving these, we get Q2 sin square alpha by 2 equal to P. Alpha की वैल्यू हमें मिल गई 2 sin inverse under root P by 2Q. This is the required answer. Now we solve example number 5. Two forces P and Q acting on a particle are inclined at an angle theta. मीन्स दो फोर्स दे रखे हमें P और Q और उनके बीच का एंगल हमें गिवन है थीटा. If the sum of their resolved part in certain direction be x. अब क्या दे रखा है, इनके रिजोल्व पार्ट का सम किसी भी सर्टेन डायरेक्शन में x गिवन है और अलोंग ए परपेंडिकुलर डायरेक्शन भी y. देन हमें प्रूव करना है थीटा इक्वल टू दिस वन. लेट्स सोल्व दिस. लेट OX बी द गिवन डायरेक्शन
मेकिंग एन एंगल अल्फा विद पी। एक डायरेक्शन हमने ओ एक्स मान ली, एक डायरेक्शन हमने मान ली ओ वाई। ठीक है, अब जो हमारे पास Q है, Q क्या एंगल बना रहा है ओ एक्स के साथ, थीटा प्लस एल्फा, और P हमारा ओ एक्स के साथ क्या एंगल बना रहा है, एल्फा। अब रिजोल्व पार्ट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एफ कोस एल्फा। एफ की जगह हमारे पास P है, तो रिजोल्व पार्ट अलोंग ओ एक्स क्या आ जाएगा, P कोस एल्फा, एंड रिजोल्व पार्ट ऑफ Q अलोंग ओ एक्स क्या आ जाएगा, Q कोस एल्फा प्लस थीटा। बिकॉज एफ की जगह तो हमारे पास यहाँ Q आ गया और एंगल हमारा क्या है, एल्फा प्लस थीटा, एंड in their sum is given to be x, therefore x equal to p cos alpha plus q cos alpha plus theta. Similarly अब हमें क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी यही चीज दे रखी है, तो हमारे पास y क्या आ जाएगा, p sin alpha plus q sin alpha plus theta. Now scaring and adding 1 and 2 we get x square plus y square equal to this one. Now solving this, we get cos theta equal to this one, theta equal to cos inverse. Thanks.